کالے چنوں کا صدقہ اس طرح سے کر دو کہ سارا سال بلاؤں اور برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گی۔ بس یہ ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھ لو، پھر پورا سال بے فکر ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر کے مہینے میں کسی بھی دن کالے چنوں لے کر ان کا صدقہ کر دو۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے دولت ملے گی، رزق مانگو گے رزق ملے گا، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوشش کر لی، لوگوں کی منت سماجت تک کر لی، پیروں فقیروں کے چکر بھی لگا لیے، لیکن پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو آپ ماہ سفر میں کسی بھی دن کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دو۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، دولت، رزق، پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ صدقہ کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، ان کی زندگیوں میں بھی بے برکتی آتی ہے۔ پھر وہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں، پھر دیکھنا ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرمائے گا۔ اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ یا کوئی نوکری کرتا ہے، یا کسان ہے، فصل وغیرہ کاشت کرتا ہے، بے روزگار ہے، یا کوئی باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعت پیدا فرمائے گا، اور آپ کا رزق انتہائی کشادہ، وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس صدقے کو کرتے وقت آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے پابندی کے ساتھ یہ صدقہ کر دیا تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، سوائے مرض موت کے۔ ہر مرض کی شفا رکھی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آنا ایک معمولی سی بات ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہوتی ہیں، تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہے، پھر اچھے اور برے دونوں حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحانات سمجھ کر شکر بھی ادا کریں اور خوب عبادت بھی کریں تاکہ پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ذکر بے حد فضیلت والا ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر جاری ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے۔ اس کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نہ صرف دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ سفر میں بازار سے کالے چنے خریدنے ہیں اور کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کرنا ہے۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتی رہوں گی۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چنوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالے چنوں کا صدقہ زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں
अब जिन लोगों ने सफर के महीने में सदका किया होता है, खास कर काली चीज का सदका जैसे काले चनों का सदका, तो ये बलाएं ऐसी सूरत में इस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन वो लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये बलाएं इन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफर के महीने आने तक इनके ऊपर ही रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत परेशानी लेकर आती है। कुछ बलाएं बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ रिज़्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसा, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई हो, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और इज्जत की कमी का शिकार हो जाएगा। फिर वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी तदबीरें अपना ले, कभी भी रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो बीमारी लेकर आई है, तो वो शख्स बीमार रहने लगता है। डॉक्टर लाख कोशिश कर लें, लेकिन बीमारी की असल वजह समझ नहीं आती। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफर के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं, तो न सिर्फ आप आसमान से नाज़िल होने वाली इन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफर के महीने में काले चनों का सदका करने से आपकी हर हाजत और हर दुआ, दिल की हर ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी जैसी पूरी होने का हक बनता है। मतलब ये है कि अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, अगर आपके घर पैसा रिज़्क रखने की कोई जगह नहीं होगी, अगर आप अपने किसी खास मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, तो वो भी पूरा होगा। आप नजर बद से भी काफी हद तक महफूज हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, हम आपको बताते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किन बातों का ख्याल रखना है। इससे पहले कि मैं आपको काले चनों के बारे में मजीद बताऊं, आप वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा महसूस होता है। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं कि माह सफ़र में काले चनों का सदका कैसे करना है और सदका करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपके घर 1 पाव या आधा किलो चने मौजूद हैं तो ठीक है, वरना आप बाजार से काले चने खरीद लाएं। आपने 1 पाव या आधा किलो चनों का सदका लाजमी करना है। काले चने लेने के बाद इन्हें अपने पास रख लेना है और बावजू होकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3, 7 या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आप दरूद मुख्तसर और आसान सा भी पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। लेकिन अगर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़े तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। आप कौन सा दरूद पढ़ना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन दरूद पाक को ध्यान और मोहब्बत के साथ पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मुटा देता है, इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से परेशानियों से निजात मिलती है। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिए ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग होती है, ख्वाहिश अलग होती है, परेशानी अलग होती है। अगर आप दौलत चाहते हैं, रिज़्क चाहते हैं या सारा साल बलाओं और बुरी आफात से महफूज रहना चाहते हैं, तो इस मकसद की नियत कर लें। आपका जो भी मकसद या हाजत है, नियत करते ही आपने 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। याद रखें, तौज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, इसमें खैर, बरकत और सलामती होती है। जब आप नियत कर लें और तौज़ और तस्मिया पढ़ लें, तो ये महसूस करें कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म है और आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जो काले चने आपके पास रखे हैं, इन पर यह वजीफा पढ़ना है और फिर इन चनों का सदका कर देना है। ये वजीफा आप इसलिए पढ़ेंगे ताकि आप जिस हाजत और मकसद के लिए ये सदका कर रहे हैं वो पूरा हो जाए। सबसे पहले जो वजीफा पढ़ना है वो कुरान पाक की एक सूरत है, जो सबसे छोटी सूरत लेकिन इसके कमालात बेहद ज्यादा हैं, और वो है सूरतुल कौसर। इस सूरत को दौलत का खजाना भी कहा जाता है, कामयाबी का राज भी। इसको पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। इस मुबारक महीने में जो बंदा सूरतुल कौसर पढ़कर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह इसकी हर हाजत पूरी फरमाता है। आज आपने भी सूरतुल कौसर पढ़कर अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर आंखों में आंसू लिए दुआ मांगनी है।
ताकि आपकी नामुमकिन हाजत भी मुमकिन बन जाए। आपने सूरतुल कौसर सिर्फ 3 मरतबा पढ़नी है। ये सूरत कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से 108 नंबर पर आती है, जिसमें 1 रुकू और 3 आयात हैं। ये मक्की सूरत है और इस वक्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतें यके बाद दिगरी नाज़िल हो रही थी। दावत तौहीद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिश्तेदार आपसे अलहदा होकर मुखालिफ हो गए थे और फिर आपके बेटों की वफात का गम भी आ गया। आपके दोनों साहबजादे कम उम्र में ही वफात पा गए थे। तो इन सारे दुखों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर सूरत मुबारक नाज़िल फरमाई। सूरतुल कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है और बेशुमार रहमतों और बरकतों का खजाना है। ये आयात रंजो गम को दूर करती हैं और मोमिन के दिल को फराखत, शादमानी और खुशियाँ देती हैं। जब आप 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की एक और सूरत पढ़नी और वो है सूरतुल फलक। सूरतुल फलक कुरान पाक की 113 नंबर सूरत है। दूसरे नंबर पर आपने इसे सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरतुल फलक पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर सूरतुल नास पढ़नी है। सूरतुल नास कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है। आपने सूरतुल नास भी सिर्फ 3 बार पढ़नी है। ये तीनों सूरतें कुरान पाक की छोटी, नहायत मगर ताकतवर सूरतें हैं और इनकी ताकत का राज आपको मालूम है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई एक खास नेमत है। अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी थी कि आपका जिक्र और नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा और यही बात सूरत कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी मगर सबसे ताकतवर सूरतों में से एक बनाती है। इस तरह सूरतुल फलक और सूरतुल नास दोनों नहायत मुख्तसर मगर बेहद ताकतवर हैं। इनको पढ़ने वाला जन्नात इंसान दोनों के शर और हसद से महफूज रहता है। आसमानी बलाएं इन पर नाजिल होने का सोच भी नहीं सकती और अचानक आने वाली मुसीबतों से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। जब आप 3 बार सूरतुल कौसर, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर से 3, 7 या 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद सबसे खास बात यह है कि जो काले चने आपने सामने रखे हैं इन्हें आपने सदका कर देना। नोट फरमा लें कि काले चनों को कभी भी कच्चा सदका नहीं करना, यानी बगैर पकाए नहीं देना। आपने ये चने पकाकर सदका करने हैं। बाज लोग सिर्फ काले चने उबालकर जब वो अच्छी तरह गल जाते हैं गली मोहल्ले गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों को तकसीम कर दें तो बच्चे शौक से खाते हैं। इस तरह इन पर नमक वगैरह डालकर डब्बे में बनाकर भी तकसीम कर सकते हैं। अगर आप काले चनों का सालन पकाकर गरीबों को रोटी के साथ खिला दें तो ये भी बहुत बेहतर है। इन तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर वापस आएंगे आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपके तमाम बंद रास्ते, तमाम मुश्किलात ऐसे दूर होने लगेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। लोग आपको पूरा साल दुआएं देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सदका करने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। रब्बे करीम आपका हामी और नासर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का नेहगबान हो, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।